सो वी आर कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके पिछले जितने भी 4 पार्ट्स हुए हैं वो सारे आप देख लें, सो दैट आपको सारे के सारे केस लॉज एक जगह पे मिल जाएं। पहले 4 पार्ट हो चुके हैं सर वीडियो के, दिस इज द 5th पार्ट। सो नेक्स्ट केस इज दिस इज चैप्टर नंबर 9, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मॉल प्रैक्टिसेस सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर। सीआरपीसी वाले सारे केस लॉज हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 38, सॉरी केस नंबर 38, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस मोहन मेकिन्स एंड अदर्स issues. The case addresses the issue of delay in trial proceeding, whether it is necessary for courts to write detailed order at each stage of trial. कि ट्रायल की हर स्टेज पे कोर्ट को डिटेल्ड ऑर्डर लिखना जरूरी है। कोर्ट रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट quoting in decision of Kanti Bhadra Shah observed that there is no legal requirement for trial courts to provide details order when framing charges. It is emphasized that burdening trial courts with unnecessarily paperwork and slow down the judicial process, particularly when the trials are already facing delays. The court suggested that adopting measures to expedite our court procedures can avoid avoidable delays is essential. Conclusion: the court recommended simplifying the trial procedure by reducing the need for detailed orders at each stage of the proceeding, thus allowing the trial courts to focus on expediting justice. It called for a revamp of system to address ongoing issues causing delays, कि हर ट्रायल के हर स्टेज पे आपको डिटेल्ड ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल इंग्लिश में दोस्तों इसको ऐसे ही आप रीड करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये जो था ना, ये 3-4 कट्ठे आए थे बुक में। जो 3-4 कट्ठे होते हैं ना जगह पे दिए हुए, उसका पेपर में आने का बड़ा चांस होता है। तो ये बुक में ऐसे ही लिखे हुए हैं। केस 1 इज अब्दुल नजर मदानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर। इसमें प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, द सुप्रीम कोर्ट highlighted that the primary objective of a criminal trial is to ensure the dispensation of fair and impartial justice, free from any external influence. The trial must focus solely on the facts and evidence, upholding the principle of fairness. कि जो आपके क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं, that should follow the principle of fairness. Next is K. Anbhazagan versus Superintendent of Police and others. The court stressed that the free and fair trial is fundamental to Article 21 of the Constitution. It is essential that justice is not only done, but it is perceived to have been done. Any bias or unfairness in the trial process undermines the public confidence in the judicial system and threatens the rule of law. यानी कि आपने जस्टिस किया है यही काफी नहीं है, जस्टिस हुआ है ये दिखाना भी बहुत जरूरी है। और वो आर्टिकल 21 ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल। ठीक है जी, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जुडिशरी के ऊपर। नेक्स्ट इज जयेंद्रा सरस्वती स्वामीगल तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड और the Supreme Court affirmed that the right of an accused person to be defended by a lawyer of their choice under Section 303 of Code of Criminal Procedure. The court also noted that if a lawyer is threatened with criminal prosecution, it comprises their ability to defend the accused properly, undermining the fairness of trial. यानी कि कोई भी अक्यूज पर्सन है वो अपनी पसंद का लॉयर हायर कर सकता है अपना केस लड़ने के लिए। अगर उसके लॉयर को थ्रेटन किया जाता है तो दिस इज क्या कहते हैं, अंडरमाइन द फेयरनेस ऑफ ट्रायल। इससे ट्रायल की जो फेयरनेस है वो हैम्पर होती है। नेक्स्ट इज कल्पेश दगली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। In this case, the Gujarat High Court referred to earlier decision and explained that the directors can only be considered as officer in default if the company does not have a managing director, whole-time director or manager. The court mentioned that criminal cases against officer in default should target the managing director, whole-time director and manager as well as the company secretary if applicable. If there is no such official, then the criminal cases can be filed against regular director. Since the accused was a regular director and not a MD or manager at the time, the court ruled that continuing the case against him would be an abuse of legal process. यानी कि अगर आपके केस के अंदर MD, WTD, मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी है तो दे विल बी ऑफिसर इन डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर ऑफिसर इन डिफॉल्ट की जो डेफिनेशन है उसमें MD, WTD, मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी को कवर किया गया है, नॉर्मल डायरेक्टर को कवर नहीं किया गया। तो यहाँ पे कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आपके कंपनी के अंदर MD, WTD, मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी हैं तो दे विल बी ऑफिसर इन डिफॉल्ट फॉर एनी डिफॉल्ट, और अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल डायरेक्टर को वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, आप नॉर्मल डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सिंस द एक्यूज वाज रेगुलर डायरेक्टर एंड नॉट MD और मैनेजर एट द टाइम, तो कोर्ट ने कहा कि उसके केस में दिस विल बी एन अब्यूज ऑफ लीगल पावर। तो इनके केस में जो
डायरेक्टर था वो तो नॉर्मल डायरेक्टर, ना वो एमडी था ना मैनेजर था, तो उसको ऑफिसर इन डिफॉल्ट ठहराना ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट इज किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। In this case, Karnataka High Court held that there is no legal restriction on treating more than one person as principal officer for the purpose of initiating criminal proceeding. This means that more than one individual can be held responsible for the action of a company in case of criminal charges, depending on the roles or involvement in the company's operations. Next is M. Shah versus Deputy Director of Enforcement, Bombay. The Bombay High Court, the Bombay High Court said that a person's liability in a company depends on what role they play in company and not just their job title. यानी कि कौन पर्सन कितना जिम्मेवार है एक काम के लिए, ये डिपेंड करता है कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है, ना कि वो किस जॉब टाइटल पे है। दिस मीन्स दैट समवन कुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज एक्शन इफ दे आर इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस, इफ दे होल्ड इफ दे इवन इफ दे नॉट होल्ड अ सीनियर पोजीशन। चाहे कोई बंदा सीनियर पोजीशन होल्ड करता है चाहे नहीं करता है, अगर उसने क्या कहते हैं गलत काम किया है तो वो हम देखना पड़ेगा उसके एक्शन से। Contradictions with officer in default definition. However, the Companies Act says that people holding certain positions like MD can be automatically held for companies held responsible for companies offenses even they if they are not involved or in the wrongdoing. यानी कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया है कि कंपनीज एक्ट कहता है कि कुछ अगर पोजीशन पे बंदा है, एमडी है या मैनेजर है, तो उसको ऑटोमेटिकली होल्ड कर लिया जाएगा रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व था चाहे नहीं था। द डेजिग्नेशन इटसेल्फ कैन मेक देम लाइबल, ये डेजिग्नेशन ही उनको लाइबल कर देती है। तो इसमें क्लैरिफिकेशन दी थी, फर्दर क्लैरिफिकेशन इन योगेंद्र सिंह रणबीर शर्मा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। In this case, the Allahabad High Court confirmed that a MD is automatically liable for offence under Companies Act just because of the position they hold, regardless of what they actually did. तो उन्होंने चाहे कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, क्योंकि एमडी की पोजीशन ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर डिफाइंड है, तो कंपनी में कुछ भी होगा दे विल बी हेल्ड लाइबल डायरेक्टली, चाहे उन्होंने कुछ किया चाहे उन्होंने कुछ नहीं किया। Next is SN Jain versus Registrar of Companies Principal. The Delhi High Court held that if a petitioner is named as an accused due to their role as MD, the complainant cannot later change the capacity and attempt to prosecute them in a different role such as non-executive director. यानी कि अगर आपने एक बार कंप्लेंट फाइल कर दी थी और उसमें लिखा था कि ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, बाद में आपको पता चला एमडी तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है, तो अब आप अपनी पिटिशनर में जाकर चेंज करते हो कि नहीं नहीं एमडी नहीं है ये तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो आप ये काम नहीं कर सकते, बाद में डेजिग्नेशन चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस इज पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फूड इंस्पेक्टर एंड अनदर। The Supreme Court held that in a complaint against a company and its director, the complainant must specify whether the directors were in charge of responsible for company's day-to-day management or conduct of business. A mere statement of being director is not sufficient to make director liable without specific allegations about their role in the company's management. ये दिसंबर 2020 में आया था। Next is state of NCT versus Delhi, state of NCT of Delhi of versus Rajiv Khurana. The Supreme Court held that a complainant must specify in the complaint how a director who is sought to be made an accused was in charge for responsible of the company's business. कि कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट के अंदर स्पेसिफाई करे कि जिस डायरेक्टर के खिलाफ वो चार्ज कर रहा है वो किस तरह से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। नॉट एवरी डायरेक्टर इज इन चार्ज ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, हर एक डायरेक्टर तो कंपनी के ऑपरेशंस के इंचार्ज नहीं होता। Similarly, for non-director officer, the complainant must outline their duties, responsibility and how they are liable. मतलब कंप्लेंट के अंदर बताए कि ये बंदा कैसे लाइबल है और इसने क्या किया है। The complaint should clearly state the role of the accused under what category they are being treated as officer in default. कि कंप्लेनेंट को बताना है कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट है पर इसने किया क्या है, एग्जैक्टली इसने क्या किया है। नेक्स्ट इज डाइवू मोटर इंडिया लिमिटेड वर्सेस WGCDR रिटायर्ड JHD तलवानी। The Delhi High Court held that no useful purpose would be served by continuing the prosecution against the applicant, who was a nominee director. The court noted that applicant has resigned 4 years before the initiation of winding a proceeding, had no access to the company's record, and has not signed any document on the behalf of the company. Hence, the prosecution was not maintainable. कि नॉमिनी डायरेक्टर एक कंपनी में था, वो 4 साल पहले छोड़ के चला गया था, अब कंपनी के खिलाफ कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उसके अंदर आप उस नॉमिनी डायरेक्टर को हेल्ड नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक तो वो 4 साल पहले छोड़ के चला गया था और उसने कहीं पे कुछ साइन तो किया नहीं, तो ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी एक्शंस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज अनीता हाडा वर्सेस गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
Complaint against an authorized signatory of a company cannot be maintained without company being arranged as accused. In this case, a director was prosecuted under Section 292 of IPC and Section 67 of IT Act without the company being made an accused. The court referred to its earlier decision, State of Madras versus CV Parekh and another, whether it was held that the company must be first arrayed as an accused. देखो, मान लो कि कोई कंपनी के अंदर कुछ काम हुआ है, कुछ भी गलत काम हो गया है, तो जो कंप्लेनेंट है, तो वो अगर डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है, तो ये बात ठीक नहीं है, उसको कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि डायरेक्टर लाइबल है कि नहीं है। आप डायरेक्टली डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन। दिस रूलिंग अप्लाइज टू प्रोसिक्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट एज वेल for offences where both the company and its officer in default are liable. The act assumes that offence is primarily committed by the company, with the director's action being treated as that of the company itself. Hence, unless the company is made liable and arraigned as an accused, its officer in default cannot be punished। कि जब तक आप कंपनी को क्या कहते हैं एज एक्यूज वो नहीं करेंगे, तब तक आप उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी एक्यूज नहीं कर सकते। पहले आपको कंपनी के खिलाफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि किसने कितना झोल किया है। नेक्स्ट इज केस नंबर 48, ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस फिंसबरी बोरो काउंसिल। दोस्तों ये जो बीच बीच के है ना, बीच बीच के छोटे मोटे जो केसेस हैं, इनके आने के चांस इतने ज़्यादा नहीं होते, तो इनका अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पर ये जो 5-5 नंबर के जो बनते हैं ना, जैसे यूपी पोल्यूशन वाला, इसमें 5 नंबर का केस बन सकता है, धीरू भाई में 5 नंबर का बन सकता है, या 3 नंबर का भी जिसमें बन सकता है, वो सर सारे आप याद करके चले जाना। अब आप मान के चलो आरसीडी के अंदर 65 ये केसेस हैं, तो 100 के आसपास केसेस हैं, तो 100 के अंदर से मान के चलो 50-60 तो ऐसे हैं जो वन लाइनर्स केसेस हैं, जिसके अंदर मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं, एक लाइन की बस एक प्रिंसिपल कुछ बता दिया कोर्ट ने, ये और ये, तो वो सारे आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बचते हैं जो 40-50, उसमें से 10-20 ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, उनका तो रट लेना चाहिए आपको नाम। जो जून 24 के आए हुए हैं, जून 24 में 8 के 9 केसेस आए हैं, उनको आप स्किप कर सकते हो। बचे कितने, 30 एक केसेस बचे हैं जो हमको याद करने हैं। तो मेरे को लगता है कि 30 केस याद करना इज वे मोर इजियर देन रिमेम्बरिंग 100 केसेस। 30 केस जो 5-5 नंबर के हैं, कभी नहीं पूछे, उनमें से बनने का चांस बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है। पढ़ के सारा जाना है, पर कुछ कुछ केस लॉज अगर मान लो हम 30 भी अच्छे से याद कर जाएं, तो मेरे को लगता है कि इट्स फेयर फेयर प्ले। कहाँ पे थे हम? ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे है, ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस फिंसबरी बोरो काउंसिल। पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ इसका। जिसका लॉर्ड एस्क्विथ ने कहा था कि अगर कोई स्टैट्यूट हमें किसी काल्पनिक स्थिति को सच समझने को कहता है, तो उसके साथ जो नेचुरल परिणाम आएंगे उन्हें भी सच समझना पड़ेगा, जब तक कोई रोका ना गया हो। मतलब जब एक कानून एक काल्पनिक स्थिति बनाता है, तो उसके लॉजिकल नतीजे भी असली होने चाहिए। अब आप यहाँ पे बात करो, इसके अंदर लिखा गया है, लॉर्ड एस्क्विथ लॉर्ड एस्क्विथ stated that if a statute requires treating an imaginary state of affairs as real, the consequences that would naturally follow from the state must also be imagined as real unless prohibited. This highlights that when the law creates a hypothetical situation, its logical outcomes must be considered real। यानी कि कोर्ट के अंदर आपका कोई केस चल रहा है, और उस केस के अंदर आप कुछ इमेजिनरी स्टेट थी बता रहे हैं कि अगर ये हुआ होता तो ये हो सकता था, तो उससे क्या क्या हो सकता था वो भी बताना है। वो भी अगर आप ये मान रहे हो ना कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होना चाहिए, तो उसके परिणाम क्या क्या है, कि ऐसा अगर हम करेंगे तो इससे ये हो सकता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे ये हो सकता है, वो भी आपको उसमें बताना है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज पी रामानाथा अय्यर लॉ लेक्सिकॉन। इसके अंदर इसने बताया था कि कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब है एक ऐसी सीरीज ऑफ एक्ट या ट्रांजेक्शन जो एक ही इम्पल्स से शुरू होती है और एक ही लगातार फोर्स से चलती रहती है, चाहे वो कितना भी टाइम ले। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस और कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन का मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों केसेस में कोई रूल की वायलेशन होती है। अब यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज पे आओ। द टर्म कंटिन्यूइंग ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 56(2) ऑफ बंगाल एक्ट। अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस रेफर्स टू अ ट्रांजैक्शन और अ सीरीज ऑफ एक्ट that constitute an offense initiated by a single impulse and driven by uninterrupted force regardless of the time it takes. The term continuing offense and continuing contravention are usually interchangeable as both involve violation of certain rules। तो दोस्तों ये जो एक एक लाइन के जजमेंट्स है ना, ये वाले इंपॉर्टेंट है।
ये जहाँ पे मैंने जिसमें हिंदी की आपको दी हुई है ना, ये सब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर देना। ये मैंने हिंदी में इसीलिए नीचे नरेट कर दिया, सो दैट हमको ऊपर वाला एक झटके में समझ आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये जो हमारा मैराथन सीरीज चल रहा है। सो द नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण नेंची। The Supreme Court highlighted that the difficulty in defining a continuing offense in a fixed manner. The court defined continuing offense as follows. A continuing offense is one which is capable of continuing and is different from the offense which is committed once for all. ठीक है, continuing offense वो है कि जो आपका लगातार चलता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो एक बार करके बंद हो गया। It arises from a failure to comply with rule or requirement and penalty of such comments continues until the rule is obeyed or complied with. इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम कंपनी एक्ट के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उसके अंदर पेनल्टी क्या है कि 100 रुपए पर दिन पर डे लगेंगे अप टू ₹2 लाख। तो जो 100 रुपए पर डे लग रहे हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, कि जब तक आप उसको फाइल कर नहीं देते तब तक वो आपका कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस रहेगा। ये इसके अंदर बस ये छोटी सी बात है, ये भी आगे बताएंगे कंपनी लॉ वाला ना, तो इसके अंदर आगे एग्जांपल दिया उन्होंने एक आधे केस में। Every time such non-compliance occurs, the offence is committed again. Therefore, in a continuing offence, the offence continues over time, which is absent in the offence that occurs at one time or act of omission. मान लो किसी ने बंदे का मर्डर कर दिया तो दैट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। मर्डर हो गया, काम खत्म हो गया वहीं पे। ठीक है, आपने कंपनी लॉ की एक पेनल्टी की प्रोविजन को ब्रीच कर दिया, तो वो तब तक ब्रीच रहेगा जब तक आप उसको फुलफिल नहीं कर देते, है ना। आपके ऊपर पर डे पेनल्टी भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो जब तक वो कर नहीं दोगे आप तब तक चलता रहेगा। ये इसमें छोटा सा फर्क है। Next is CWT versus Suresh Seth. The Supreme Court held that a court should not readily treat an act or omission as continuing word or default. The act must be supported by explicit word in the statute, including that the legislature intended it to be a continuing offence. Principle applied in Assistant Registrar versus R. Narayan Swamy and others. The Madras High Court quoted that Supreme Court's principle from CWT versus Suresh Seth. The court clarified the phrase "for every month during which the default continued" only serves a multiply factor of calculating penalty. It does not transform the default into a continuing offense. A default becomes complete when the specific period of compliance expire and it cannot be treated as continuing offense without clear legislative intent. कि अगर उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तभी उसको मानेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लायर अगर उसमें है तो उसको नहीं मानेंगे। ये इस केस में था, लेकिन इस केस के बाद और भी केसेस हुए जिसके अंदर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ना एक पांच पांच नंबर का एक केस स्टडी यहाँ बन सकता है, ये CWT सुरेश वाला कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस के ऊपर। ये कभी नहीं पूछा गया पेपर में। दोस्तों देखो, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस वाला कभी पूछा ही नहीं गया और इस पर नीचे तक दिया हुआ है सब कुछ। तो ये मेरे को लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट केस में भी। भागीरथ कनोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। While considering the provision of Section 14(2)(a) of Employee Provision Act, observed that the question whether the particular offence was continuing offence must necessarily depend upon the factors. कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे पता लगेगा कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है? दोस्तों पहले ना आप इसको स्टार मार्क करो, ये 3 केस तो स्टार मार्क करो सर, 50, 51 और 52। 50, 51 और 52। अब इसके लिए गट फीलिंग आई है सर, इसके लिए गट फीलिंग आई है कि भाई ये आएगा पेपर में। कभी नहीं पूछा यार। देखो बड़े बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े केसेस हैं, 1, 2, 3 जजमेंट्स हैं और सब कुछ प्रिंसिपल भी बताया हुआ, मतलब अच्छे से पेल सकते हैं। और क्या पता पहला ही क्वेश्चन ये दे हमको उठा के। ठीक है सर, अब इन्होंने फैक्टर बताया कि किस कैसे मान लेंगे कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट फॉर विच क्रिएटेड दैट ऑफेंस, अगर उसकी लैंग्वेज में लिखा है कि ये कंटिन्यूइंग है। द नेचर ऑफ ऑफेंस, उसका नेचर क्या है। द पर्पस फॉर विच वाज इंटेंडेड टू बी अचीव बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग द पर्टिकुलर एक्ट एज एन ऑफेंस। ठीक है सर, ये 3 प्रिंसिपल आपको इसमें याद करने हैं। इसको भी करो स्टार मार्क, इसको भी स्टार मार्क करो। इसका ना कंक्लूजन लिख के चलते हैं बढ़िया सा। इन तीनों के बेस पे ना एक कंक्लूजन बनाएंगे हम, वो कंक्लूजन हम याद करेंगे सर। इन माया रानी पुंजो वर्सेस CIT, while considering the provision of income tax, it was held that duly continued from day to day non performance of that duty from day to day was a continuing wrong। इसको भी मार्क करो सर आप। 50 के बाद वाले तो पढ़ के ही जाने हैं सर। हाँ, अब यहाँ पे आया सर, देखो continuing offense. Kuldeep Singh was stated that Delhi High Court made following observation regarding continuing offense. No need for specific terms.
It is not necessary to use word like repetitive, subsequent, or recurring to determine it an offense as a continuing offense. Contravention continue. The concept of continuing offense keeps the contravention alive day by day without erasing the original guilt. This concept is similar to continuing case of action in civil law as seen in section 22 of Limitation Act, where a fresh period of limitation starts for each moment the continuing breach of tort. In conclusion, the concept of continuing offense is akin to continuous cause of action and does not negate the original offense. कि जब तक आपका ऑफेंस ठीक नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहेगा, पर लेकिन जो आपका ओरिजिनल ऑफेंस है वो भी कायम रहेगा। ऐसा नहीं कि आप ओरिजिनल भूल जाओगे। मान लो आपने क्या कहते हैं कंपनी लॉ में फॉर्म फाइल नहीं किया और आपकी पेनल्टी लगती है उसके ऊपर 50,000 रुपए और प्लस 100 रुपीज पर डे अप टू रुपीज 2 लाख, है ना, जब तक आप फाइल नहीं कर देते उसको। तो इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे से तो आप वो 100 रुपीज पर डे वाला ले लो, ये तो मैंने आपको दे दिया, जो ओरिजिनल पेनल्टी थी ना 50,000 वो नहीं मैं दूंगा। ऐसा नहीं होगा सर, ओरिजिनल केस भी आपका रहेगा और जो एडिशनल है वो भी रहेगा। चंद्रा स्पिनिंग चंद्रा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी। ये केस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरओसी वाला। मैंने आपको कहा था ना आरओसी वाला एक केस आएगा, ये आ गया आरओसी वाला केस। देखो अब यहाँ से पड़ेगा सर बढ़िया बढ़िया केस, ये बढ़िया बढ़िया केस है सर, ये इनके आने के चांस बहुत ज्यादा है, ये पूरा पढ़ के जाना कंटिन्यूइंग ऑफेंस वाला। द कर्नाटका हाई कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस शुड ओनली बी अप्लाइड इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस as it effectively extends the statute limitation beyond the stated term. A contravention of offense should not be deemed continuing unless explicitly stated in the language of statute. Difference between continuing case of action and wrong. A continuing cause of action in civil case arises from repeated acts or omission of the same kind. ठीक है। Continuing wrong involves an act that creates an ongoing source of injury, making the wrongdoer responsible for the continued injury. अब इसका मैं आपको मतलब एक बार समझाता हूँ क्रक्स में। इसका जो मतलब है ना, मैं समझाता हूँ आपको एक बारी, ये बहुत काम की चीज है सर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लिख के इसीलिए दिखा देता हूँ, लिख के चीजें हमको याद हो जाती है बड़ी जल्दी। देखो कॉन्टिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन सिविल लॉ में ये तब अराइज होती है जब रिपीटेड एक्ट्स या ओमिशन सेम टाइप के होते हैं। एग्जांपल, किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में अगर ओपोनेंट बार बार लीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो ये कॉन्टिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग ये इन्वॉल्व करता है एक ऐसा एक्ट जो ऑनगोइंग इंजीनियरिंग का सोर्स बन जाता है, जिसे रॉन्ग डूअर कंटिन्यूअस इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जांपल, अगर कोई फैक्ट्री कॉन्टिन्यूसली टॉक्सिक वेस्ट रिलीज कर रही है जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग होता है। दोस्तों आई होप आपको यहां से बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये बात, है ना। अगर किसी प्रॉपर्टी में बार बार इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो ये कॉन्टिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन है। अगर कोई फैक्ट्री डेली कोई टॉक्सिक वेस्ट रिलीज कर रही है तो ये कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग है। यहां से आपको इसकी बात की थोड़ी समझ में आ गया होगा। नो कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग इफ इंजरी इज कंप्लीट, if the wrongful act causes complete injury there is no continuing wrong even if the resulting damage continues over the time। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने एक बार किसी का सिर फाड़ दिया, अगर उसका सिर फाड़ने के बाद वो खत्म हो गया वहीं पे, ऐसा नहीं कि आप उसका सिर फाड़े ही जा रहे हो या रोज थोड़ा थोड़ा सिर फाड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। ओ भाई साहब, अगर आपने एक व्यक्ति का सिर फाड़ दिया तो वो इंजरी कंप्लीट है, उसके बाद उसको टांके लगवाने जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप रोज थोड़ा सा फाड़ोगे फिर वो एक टांका लगवा के आएगा, फिर आप थोड़ा सा रोज फाड़ोगे सिर फिर वो एक टांका लगा, सिर खोल दिया तो खोल दिया। तो उसके अंदर आपको कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो नहीं माना जाएगा। In conclusion, the court emphasized the term continuing offense should be used cautiously on and only when required by the statute, distinguishing it from the other legal concept like continuing wrong or cause of एक्शन। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज गोलक पटेल वोल्डेमोट, नहीं गोलक पटेल वोलकाट वर्सेस डुंडिया गुरुदिश गुरुदिशदया हेमराज एंड अदर्स। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे हम? गोलक अगर इसका याद है ना, इसमें लिखाना इन द केस ऑफ गोलक पटेल, इन द केस ऑफ गोलक पटेल वोलकाट लिमिटेड। ये हो सकता है याद ना आए, दुंदया गुरुदिन चिंदिया हेरमाथ, आई डोंट नो व्हाट्स इट्स रिटन। Supreme Court defined a continuing offense and highlighted the following key points. Definition of continuing offense. Black Law Dictionary. Continuing means enduring, not terminated by single act, and applies to successive similar obligation or occurrences.
Continuing offense is one that is committed over a span of time consisting of separate acts or a course of conduct arising from a single impulse. Statute of limitation. In continuing offense, the period of statute of limitation begins with the last act of offense, not from the first act. The offense is continued. The offense is continued until the cessation of criminal conduct. Comparison with civil wrong. दोस्तों ये बड़ा केस है, गोलक पटेल वाला। ये बड़ा केस है सर, ये आ सकता है, इसको अच्छे से हम यहाँ से, मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में इसके मैंने पॉइंटर्स बना दिए हैं। अब ये पॉइंटर पॉइंटर एज इट इज याद करके एज इट इज लिखा। The concept of continuing wrong in a tort law, such as trespass to land, is similar to continuing offense. It consists of acts that occur repeatedly, such as entering or remaining on land without lawful justification. Application of section 360 630 of the Companies Act. इसमें क्या लिखा है? द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर रॉन्गफुल विदहोल्डिंग प्रॉपर्टी अंडर 630 ऑफ कंपनीज एक्ट सिमिलर टू सेक्शन 450 ऑफ कंपनीज एक्ट एज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। द ऑफेंस कंटिन्यूड until the property is returned to the company। यानी सेक्शन 452 के अंदर अगर किसी ऑफिसर ने कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा मार लिया है या उसको रॉन्गफुली विदहोल्ड किया हुआ है, तो दिस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस जब तक वो उसको रिटर्न नहीं कर देता। बेसिक फैक्टर फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। दोस्तों ये बन गया क्वेश्चन, ये लो, ये बन गया क्वेश्चन। इन द केस ऑफ गोलक पटेल वोलकाट, है ना, उसके अंदर पूछेगा बताओ क्या बेसिक फैक्टर होने चाहिए फॉर कंसीडरिंग अ कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस। ये होने चाहिए सर। ये रहा 5 नंबर का आंसर, 5 ही पॉइंट है, आ सकता है सीधा। द ऑफेंस शुड हैव एन इफेक्ट दैट कंटिन्यूज बियॉन्ड द डेट ऑफ फर्स्ट कमीशन। ठीक है जी। द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन शुड बी कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ऑफेंस। ठीक है, जो ऑफेंस है वो आपका बियॉन्ड द डेट ऑफ इस फर्स्ट कमीशन चलता रहना चाहिए। उसके पीछे की जो इंटेंशन है वो स्टैट्यूट में लिखी होनी चाहिए। Statute must make compliance with requirement compulsory, or the language used in the statute should support the interpretation of continuing offense. The penal clause should allow the penalties during the period of offense continuance. This decision highlights the importance of statute's language and legislative intent in determining whether an offense is continuing in nature or not। तो दोस्तों आप ये 5 पॉइंट एज इट इज लिखाना पेपर में, उसमें बुक के अंदर ना पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो आप पैराग्राफ की बजाय से 5 पॉइंट लिख के आओगे ना तो दिस विल बी बेटर। नेक्स्ट इज Juan Lee versus Registrar of Companies, and in Tianchi India Private Limited versus ROC. Delhi High Court held that unless the offence was repeated or committed on a daily basis after initial default, it cannot be held to a continuing offence. Offence was repeated or committed on a daily basis after the initial default। अच्छा, कि आपने इनिशियल डिफॉल्ट करने के बाद अगर वो डिफॉल्ट हर दिन नहीं हो रहा तो आप उसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं कहेंगे। Next is Uday Shankar Avasthi versus State of UP. In the case of continuing offense, the offense continues even after its first act, meaning the offense persists over time. In contrast, an instantaneous offense occurs once for all the moment it happens, and there is no continuation of the offense itself, even if the damage caused continues। यानी कि देखो इसके अंदर पता है क्या है? मान लो किसी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर पेपर स्प्रे कर दिया, पेपर स्प्रे कर दिया, ऑफेंस कंप्लीट है सर। आज उसने पेपर स्प्रे करा, दोबारा वो जिंदगी में कभी नहीं करेगा, तो आप ये कहोगे कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। लेकिन अब उस पेपर स्प्रे से उसकी आंखों में होगी एलर्जी, बड़ी गंदी एलर्जी होगी। अब उसको दर्द उसका चल रहा है, 1 महीना होगा, 2 महीने होगा, 6 महीने तक बेचारे की एलर्जी नहीं ठीक हुई, तो क्या आप इसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस मानोगे? देखो करने वाले ने पेपर स्प्रे एक बार मारा था बस, लेकिन उसकी एलर्जी होगी, तो अब इसमें क्या करोगे आप? तो इसमें कहा था कि the key difference is that continuing offense involves ongoing effects, whereas an instantaneous offense is completed when the act is done। तो अगर किसी एक ऐसा एक्ट जो आपने एक बार किया और वो एक्ट खत्म हो गया, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स थे वो लॉन्ग टर्म तक चल रहे हैं, तो इसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस मानेंगे। कि इसने पेपर स्प्रे मारा था, उसके आंखों में एलर्जी थी और एलर्जी चलती रही, ठीक है, उसने एलर्जी नहीं दी, उसने पेपर स्प्रे दिया था, दिस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। दोस्तों आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लाइक दबा दें दोस्तों इसी बात पे, लाइक दबा दें दोस्तों, कमेंट कर दें। नेक्स्ट इज हर डिलिया यूनिवर्स लिमिटेड वर्सेस श्रीमती रेणु जैन। The Rajasthan High Court held that under Section 1132 of the Companies Act, defaults under Section 113 are recognized as continuing offence। 113 के जो डिफॉल्ट है कंपनीज एक्ट में वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। 113 क्या है भाई?
दोस्तों 1 मिनट। दोस्तों हमको ना बेयर एक्ट अपने हाथ में रखना चाहिए, जहाँ कुछ दिखे सर आप इसको साथ के साथ देखो। देखो कंपनीज एक्ट 2013 में 113 लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एट मीटिंग ऑफ कंपनीज और क्रेडिटर्स। इसमें तो ये लिखा है यार, the phrase default continuous indicate that offenses persist over time, making it a continuous offense. Therefore, the complaint cannot be dismissed due to the limitation of offenses considered ongoing. Next is in ROC versus Bharat Produce Company Limited and others. ROC वाले सारे केस करके जाना सर आप। The Calcutta High Court held that for an act to be considered an offence, there must be a clear statutory prohibition. Section 269(2) of the Companies Act 1956 does not create an offence. Since no offence is created under Section 269(2), the question of being continuous offence on the application of limitation period does not arise. The court discharged the rule in this case. इसको एक बारी समझें यार, हिंदी में क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा इसका वो लगा। कैलकाटा हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि किसी एक्ट को ऑफेंस कंसीडर करने के लिए क्लियर स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 1950 के सेक्शन 269(2) ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। जब सेक्शन 269(2) के अंडर कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं होता तो उससे कंटिन्यूइंग ऑफेंस या सीआरपीसी के सेक्शन 468 के लिमिटेशन पीरियड के अप्लाई होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। कि अगर एक्ट में डिफाइंड है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है तो फिर आप उसको सीआरपीसी में भी उसको आप कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं ले सकते, उस पर वो लिमिटेशन वाला पीरियड नहीं लगेगा। In Shri Dharma Sugar Industries Private Limited versus ROC, the Karnataka High Court considered Rule 11 of Companies Acceptance Deposit Rule. The court observed that contravention of the provision is punishable with a fine if it is a continuing offence. A further fine is imposed for every day during the default continues. However, the court held that once the default in filing return under Rule 10 after June, the offence is considered complete. The offence does not continue after that, even if return is filed later. ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर डबल ट्रिपल 3 स्टार मारो। केस स्टडी बन के आएगी। एक कंपनी थी जी, डिपॉजिट की रिटर्न फाइल कर रही थी, ठीक है। डिपॉजिट की रिटर्न उसने फाइल करी, डिपॉजिट की रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है सर। और उसके ऊपर फाइन लग गया कि पर डे आपका इतना इतना फाइन लगेगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यूड है। तो इसके अंदर हाई कोर्ट का जजमेंट है इन श्री धर्मा शुगर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी। दोबारा नाम बोलो, श्री धर्मा शुगर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी। इसमें कोर्ट ने कहा कि डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अकर्स, मान लो एग्जांपल जून 30 को, इस कंसीडर्ड कंप्लीट कि आपने एक बार रिटर्न फाइल नहीं की तो ये आपका कंप्लीट ऑफेंस है, ठीक है। द ऑफेंस डज नॉट कंटिन्यू आफ्टर दैट इवन इफ द रिटर्न इज फाइल्ड लेटर। चाहे आपने रिटर्न बाद में फाइल करी, चाहे आपने डेली डेली जितना मर्जी फाइन पेनल्टी पे किया, पर आपका ऑफेंस कंप्लीट था, इसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं मानेंगे। इसमें ये नहीं कह सकते, देखो कंटिन्यूइंग ऑफेंस पता कब हो गए, मान लो उसने एक बार डिपॉजिट की रिटर्न फाइल नहीं की, फिर दोबारा रिटर्न फाइल नहीं करी, फिर दोबारा डिपॉजिट लिया, फिर रिटर्न फाइल नहीं करी। अब ये 10-11 बार उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, दिस इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस। पर एक बार रिटर्न फाइल नहीं करी, उसके ऊपर लगातार फाइन 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 लगता गया और बाद में लेट फाइन देके उसने वो फाइल कर दी, तो दिस इज अ सिंगल ऑफेंस, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस वाले हैं ना, इसमें जो जजमेंट्स है ना, ये एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी है। मान लो एक जज ने कुछ कह दिया, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये तो ये है। तो तीसरा कहता है नहीं जी किसी ने फॉर्म फाइल नहीं किया, हम उसको मान लेंगे। दूसरा कहता है नहीं नहीं फॉर्म फाइल किया तो हम मानेंगे। तो इसके अंदर जो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस वाला है ना दोस्तों, इसको 3 से 4 बार आप पढ़ के जाना बड़ी तसल्ली से, ये जो केसेस वाले, क्योंकि इसके अंदर केस स्टडी एक आधे केस से तो बनेगी, मेरे को बड़ी उम्मीद है इस बार इससे बनेगा तो पक्का कुछ ना कुछ। नेक्स्ट इज हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड और वर्सेस आरओसी एंड अनदर। अब ये जो केस था ना, ये इसका लैंडमार्क केस मान सकते हो आप। द कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्ट्रावेशन रूल 10 ऑफ कंपनी एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट रूल इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अब देखो, इसने कहा कि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, ये कह रहा है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। द डिफॉल्ट कंटिन्यूज अंटिल द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इज फाइल्ड। वो कह रहा है जब तक तेरी रिटर्न फाइल नहीं हो रही तब तक उसको कंटिन्यू डिफेंस हम मानेंगे कि डिफॉल्ट तो कंटिन्यू है। The company cannot file a return for subsequent year until the return of previous year for which default occur is furnished। अब ये कह रहा है कि जब तक तू पिछली रिटर्न फाइल नहीं कर देगा तू अगली भी नहीं फाइल कर सकता। जब तू पिछली रिटर्न ही फाइल नहीं करेगा तो अगली रिटर्न कैसे फाइल करेगा? तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। ये देखो, ऊपर वाला कह रहा था कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, नीचे वाला कह रहा है कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। तो अल्टीमेटली इसमें यही हेल्ड हुआ था कि इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है।
penal provision, Rule 11 of Company of ये that if the contravention is continuing one, a further fine may be imposed. The fine can extend to INR rupees 50 every day for continue interpretation of the continuing. The court emphasized that default continues until the required return is filed, and the company remains liable for the penalty for each day of non-compliance. The case reinforces the concept of constituting offences under company's acceptance of deposit, where नॉन कंप्लायंस परसिस्ट अंडर द डिफॉल्ट इज रेक्टिफाइड। दोस्तों ये दोनों केस पे एक केस स्टडी मेरे को लग रहा है बनेगी। केस स्टडी घुमा के दे देंगे सर, केस स्टडी घुमा के दे देंगे, उसके अंदर हमको दोनों केस लिख के आने हैं कि हमारे पहले वाले केस में क्या हुआ और दूसरे वाले केस में क्या हुआ। पहला वाला केस है श्री धर्मा शुगर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज आरओसी, दूसरा केस है हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड वर्सेज आरओसी। धर्मा शुगर आरओसी, हैदराबाद वनस्पति आरओसी। धर्मा शुगर आरओसी में रिटर्न ऑफ डिपॉजिट को कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं माना गया, हैदराबाद वनस्पति के अंदर रिटर्न के डिफॉल्ट को कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों मेरे दिल से आवाज आ रही है कि ये दोनों आएंगे, इनका नाम याद कर लेना। नेक्स्ट इज जे के पालीवाल, श्री बी के पालीवाल, ये 2-3 बार आ चुका क्वेश्चन। Unauthorized of sale of a company's property. The company law board found that a property of company was sold without proper authorization from board of directors or shareholder. The sale violated the provision of section 293(1) of the Companies Act, which requires approval for the sale of company's property. कि कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी गई, ना शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया ना डायरेक्टर का अप्रूवल लिया, ये क्या बात हुई? तो फिर बेची किसने यार, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। जब डायरेक्टर से अप्रूवल नहीं लिया और शेयर होल्डर से नहीं लिया तो बेच कौन गया भाई? है ना, क्वेश्चन है यार। डायरेक्टर से भी अप्रूवल नहीं लिया, शेयर होल्डर से भी अप्रूवल नहीं लिया, तो भाई कंपनी बेची किसने यार? डायरेक्टर ने बेची कि शेयर होल्डर ने? Inadequate sale considered. The consideration for the sale was found to be inadequate. The sale consideration was deposited in the bank and withdrawn on the same day, indicating suspicious transaction. CLB observed that the transaction was a sham and the sale was carried out under dubious circumstances. कि झूठी मूठी में कुछ कुछ कागज कुगज बना के किसी ने बेच दी। बेची किसने ये नहीं पता। हाँ, डायरेक्टर्स ने बेची। ओ वाओ, breach of fiduciary duty. Directors were found to have breached their fiduciary duties. The CLB highlighted that directors in some respect are similar to trustees. Equity prohibits a trustee from making any profit from their management. तो डायरेक्टर्स ने बेची दोस्तों। अब इस पे पर्दा हट चुका है केस पे से कि किसने बेची। डायरेक्टर्स ने बेच दी बिना बोर्ड मीटिंग की या बिना जनरल मीटिंग की। Fiduciary duties of director. Director must act in the best interest of the company and not for the personal gain or external purposes such as acquiring control over the company. They are required to act with utmost good faith, care, skill and due diligence. Director must make full and honest disclosure to shareholders regarding all significant matters affecting the company. Conclusion. The case reinforces the importance of directors adhering to their fiduciary duties and acting in the best interest of the company with full transparency and proper authorization for हाँ जी दोस्तों, कहाँ थे हम? हाँ, जेके पालीवाल वाला हो गया था हमारा। द केस reinforces the importance of director adhering to their fiduciary duties and acting in best interest of the company with full transparency and proper authorization for significant transaction. दोस्तों आप एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ दोस्तों, आपने आरसीडी के इतने सारे केस लॉज निपटा दिए, सिर्फ 2 केस लॉ बचे हैं, आपका आरसीडी का सब्जेक्ट खत्म होने वाला है। दोस्तों अपने लिए आप एक बार क्लैपिंग करें कि आपने पूरे के पूरे आरसीडी के केस लॉज कवर कर दिए, कुछ भी नहीं बचा सर, मॉड्यूल के सारे केस लॉ कवर है इसमें। नेक्स्ट इज फोडारे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शियान, ये दिसंबर 2019 के अंदर आया था, ये दोबारा से आ सकता है। Shian was the sole director of the company during relevant period. Shian sold the company's property, cleared registered mortgage, and divided funds from the sale. A total of $383 was transferred to Shian personal bank account. Another 251 was used to discharge a mortgage over a daughter's property. क्या बात है, क्या बात है। शियान ने अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी, जिसमें से $383,000 उसने अपने पैसे में अपने खाते में डाल लिए और $251,000 अपनी बेटी के खाते में डाल दिए, उसका एक लोन था उसको चुकाने के लिए। इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या जो इसमें शान की जो बेटी है उसको भी लायबल ठहराया जाएगा। अब इसके अंदर था द कंपनी वाज बाउंड अप एंड लिक्विडेटर कमेंस्ड द प्रोसीडिंग। द लिक्विडेटर sought a declaration that Shan had breached her fiduciary duty as director.
fiduciary breach and constructive trustee. The court found that Xian had breached her fiduciary duty by diverting fund for personal use. Xian was ordered to pay equitable compensation to company for amount diverted, $383,000, and statutory compensation along with interest and cost. Liability of Xian's daughter. ये दोस्तों ये point important है. The daughter was found liable as a constructive trustee. The daughter was aware that funds received were from the sale of company's property. The court held that daughter liable for equitable compensation of 2,51,000 प्लस इंटरेस्ट. कोर्ट ने कहा कि जो बेटी थी उसको भी पता था कि जो पैसा है कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के आया है और उसका लोन चुकाया जा रहा है इससे, तो इसलिए डॉटर भी फुली लाइबल है, उसको $2,51,000 देने पड़ेंगे प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है जी, बस ये था इस केस में. जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी. द कोर्ट रूल दैट बोथ शॉन एंड हर डॉटर वर jointly liable and severally liable for the amounts diverted. They were to pay the equitable compensation together with the interest. ये कंक्लूजन दोस्तों मैंने एक एक लाइन में लिख दिया है, ये भी आप साथ में पढ़ जाना, फिर इसको भी लिख के आ जाना. मैंने इसको आंसर फॉर्मेट में बना दिए जितने केस लॉ थे ना, कि 5 नंबर का आंसर सीधा कैसे लिखें, सीधा आंसर ही लिखा हमने इसमें. सेडी वर्सेस फराह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड. बस दोस्तों पहुंच गए हम अंत में. A joint venture partner used information acquired during the venture to secretly acquire the property adjacent to the joint venture site for personal gain. This conduct was breach of fiduciary duty. एक जॉइंट वेंचर में एक पार्टनर था, उसने जॉइंट वेंचर की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक प्रॉपर्टी अपने आप ही एक्वायर कर ली जॉइंट वेंचर की फॉर पर्सनल गेन. ठीक है, वो उसकी फिड्यूशरी ड्यूटी को ब्रीच उसका माना गया कि दिस कंडक्ट वाज अ ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी. कोर्ट्स डिसीजन. द कोर्ट कैलकुलेटेड द प्रॉफिट्स मेड बाय द पार्टी इन ब्रीच allowing for entrepreneurial skills and effort in turning into opportunity to profit despite the super superstitious behavior. The court deemed the allowance for entrepreneurial skill appropriate. The case highlights that while breaching the fiduciary duty is serious, the court may consider the entrepreneurial effort in calculating the profits made from such wrongful conduct. देखो इसमें मैं ना आपको केस बताता हूँ. एक हॉस्पिटल था सर, एक हॉस्पिटल था, उसमें 4 डॉक्टर थे. वही 4 डॉक्टर उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी उसी हॉस्पिटल के नाम से और उसमें वो डायरेक्टर भी थे. तो अब उस हॉस्पिटल के नाम से ना एक खंडर प्रॉपर्टी पड़ी थी, वहां पे थी एक खंडर प्रॉपर्टी पड़ी थी, एक रेजिडेंशियल जगह पे खंडर प्रॉपर्टी थी. तो उन 4 डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर ना स्मार्ट था बहुत. कहता सर ये जो आपकी प्रॉपर्टी है खंडर पड़ी है, बिल्कुल मेरे पास घर नहीं है जी, मैं अपना क्लिनिक वहां खोल लूंगा एक छोटा सा, है जी, गरीब का काम चल जाएगा, मैं अपना घर गुर वहां पे बना लूंगा. बाकी डायरेक्टर कह रहे कि चल कोई नहीं यार, खंडर ही तो पड़ा, प्रॉपर्टी इसको दे दो, आधे रेट में दे दो. मार्केट प्राइस से आधे रेट में उसने खंडर खरीद लिया. बचे हुए आधे पैसे उसने उस पर लगाए, 4 प्लॉट काटे, उसके ऊपर 4 घर बनाए, चारों घर रेंट पे चढ़ा दिए. भाई साहब, भाई साहब, अल्टीमेट खेल गया करोड़ों के अंदर. एक घर वहां पे उसने साइड में जब बनाया वो बेच दिया, बाकी के बाकी 4 घर जो थे उसने वो किराए पे चढ़ा दिए. अब बाकी जो डायरेक्टर से जो डॉक्टर थे वो बोले साले तूने तो पर्सनल रेजिडेंस के लिए मांगा था और ये तूने करा क्या, इसको कमर्शियल बना के बेच दिया. तो वो कहता मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, तुमने तो बेच दिया. तो लोग ऐसी ऐसी हरकतें भी करते हैं. तो दिस इज द ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी, ऐसा नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एपी वर्सेस गौरी शेट्टी महेश एंड अदर्स. ज्यूरिसडिक्शन अंडर 482. तो दोस्तों दिस इज लास्ट केस. कांग्रेचुलेशंस, आपका आरसीडी का आखिरी केस है. बस इसके बाद आरसीडी के सारे केस लॉस खत्म, फिर सिर्फ एडिशनल वाले रह जाएंगे जो पेपर में बाहर से टप्पा आए थे. तो इसमें क्या था, jurisdiction under section 482. The high court, while exercising its inherent power under section 482 of CRPC, does not ordinarily assess the reliability of evidence or whether the accusation can be sustained. This is the function of trial court. Direction of the discretion of the court. The court must exercise its discretion judicially, considering all relevant facts and circumstances before issuing process. The court should not become an instrument for private complaints to misuse for harassment. 482 is not being used by the accused for bypass a full investigation or bring a prosecution to premature and without a thorough inquiry. The court should be careful in using its power under 482, ensuring that the process is not misused for harassment or to prevent a proper trial. दोस्तों एक बार इसका इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है क्या है इंग्लिश. वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रहा. इस बार जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस इंपॉर्टेंट लग रहा है. 10 अटेम्प्ट हो गए दोस्तों आरसीडी के, कंटिन्यूइंग ऑफेंस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, और उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज है. तो इस बार कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मेरे को लग रहा है कि उठाएंगे, या वो फोडारे वर्सेस शियान वाला कराएंगे. तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस तो दोस्तों रट्टा मार के जाना, बिल्कुल गट फीलिंग है कि वो आएगा आएगा.
जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट जब अपनी इनहेरेंट पावर 482 के अंडर एक्सरसाइज करता है, वो एविडेंस की रिलायबिलिटी असेस नहीं करता या एक्विजिशन सस्टेन हो सकता है या नहीं, ये डिसाइड नहीं करता। ये ट्रायल कोर्ट का फंक्शन है। देखो, जब हाई कोर्ट है उसके अंदर कोई केस आया ना, तो वो एविडेंस की रिलायबिलिटी पे एक्सेस नहीं करता। वो ये नहीं करता कि एक्यूजिशन सस्टेन हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो, अगर कोई अपील हाई कोर्ट में गई है किसी उसके खिलाफ, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन हुआ ही होगा। तो अब जो हाई कोर्ट है ना, वो ये नहीं एसेस करेगा कि इसके अंदर जो एक्विजिशन है ये सस्टेन हो सकता है कि नहीं है, कि जो आपकी पिटीशन है वो ठीक है कि नहीं है। ये ट्रायल कोर्ट का काम है सर। ट्रायल कोर्ट उसको एडमिसिबिलिटी है कि नहीं है, ये सब ट्रायल कोर्ट बताएगा। हाई कोर्ट सिर्फ उसकी जजमेंट के ऊपर अपना सेकंड सेकंड जजमेंट देगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को अपना डिस्क्रिप्शन जुडिशियली एक्सरसाइज करना चाहिए, सारे रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करके प्रोसेस इशू करने से पहले। कोर्ट को प्राइवेट कंप्लेनेंट्स के लिए हैरेसमेंट के लिए मिसयूज होने का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए। मान लो एक बंदा था, उसका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उसका केस एडमिट भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके खिलाफ आ गई जजमेंट। अब वो चल जाता है हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट के अंदर जाके वो अपने सेम केस को अपील अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है हाई कोर्ट के अंदर। तो वहां पे जाके हाई कोर्ट के अंदर ना वो जाके बताता है कि इसमें तो एविडेंस ही ठीक नहीं थे, ये कोर्ट एडमिट केस एडमिट कैसे हो गया उसके अंदर। तो यहाँ पे ये काम हाई कोर्ट का नहीं है कि केस एडमिट कैसे हो गया कि क्या नहीं हुआ। हाई कोर्ट का सिर्फ काम ये है कि अगर कोई जजमेंट गलत आई है तो उस जजमेंट को वो रिव्यू करेगा, उसके बाद देखेगा कि इसका ठीक हो सकता है या फिर वही ठीक है। हाई कोर्ट ये नहीं देखेगा कि आपने फाइलिंग कैसे करी थी वो ठीक बात है कि नहीं। तो दिस इज मतलब ऐसे आप हैरेस नहीं कर सकते किसी को। और फिर लास्ट लाइन में था कि पर्पस ऑफ सेक्शन 482, सेक्शन 482 का यूज एक्यूज्ड के द्वारा पूरी इन्वेस्टिगेशन को बाईपास करना या प्रोसिक्यूशन को प्रोमेच्योर एंड पे लाने के लिए नहीं होना चाहिए बिना थोरो इंक्वायरी के। कोर्ट को अपने पावर 482 के अंडर यूज करते वक्त केयरफुल होना चाहिए, इंश्योर करते हुए कि प्रोसेस को हैरेसमेंट के लिए मिसयूज ना किया जाए या प्रॉपर ट्रायल को प्रिवेंट ना किया जाए। दोस्तों, ये केस ऐसा ही लग रहा है मेरे को, इसमें कुछ खास बनता तो है नहीं। एडिशनल सरप्राइज केसेस, दोस्तों कुछ ऐसे केसेस थे जो बाहर से आ गए थे, मतलब बुक में कहीं लिखे नहीं हुए और आरसीडी में पूछ लिए। तो ये जो मेरे को इंस्टीट्यूट का एक्ट लगता है थोड़ा ठीक नहीं लगता यार। आप थोड़ा बच्चों पर रहम पाओ। बुक बुक में थोड़े केस लो हैं यार, 100 के करीब केस लो हैं, उसके बाद भी आप बाहर से पूछ रहे हो, बच्चा कहाँ जाएगा यार। चिंतामन वसी ध्यानेश्वर एंड एएनआर, दिसंबर 2019 में। In this case, the accused sold the property of the to the complainant. In the fact, the said property was already mortgaged to some other person. The accused concealed the mortgage and registered it in favor of the complainant. Received full consideration. The High Court held it for the clear cheating offense. एक बंदे ने क्या किया, एक बंदा था, उसने क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी ली थी, उसको गिरवी रखा था किसी और पे। किसी बंदे की प्रॉपर्टी को गिरवी रखा था किसी, मान लो एक व्यक्ति के, मान लो सन 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 संदीप है। अब संदीप ने एक प्रॉपर्टी ली, संदीप ने उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन ले लिया, उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन ले लिया। अब उस प्रॉपर्टी को बेचाया, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेचाया, बेच के सारा पैसा हड़प लिया, लोन देने से मुकर गया। लोन देने से मुकर गया, कहता प्रॉपर्टी तो मेरी है ही नहीं, ले ले जो करेगा, जो करना है कर ले। तो इस केस के अंदर यहाँ पे इट वाज हेल्ड कि दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग। नेक्स्ट इज महेर वर्सेस हिबर्निया हिबर्निया INST, दिसंबर 2020 में आया था। फ्रॉड कंसिस्ट ऑफ सम डिसीटफुल प्रैक्टिस और विलफुल डिवाइस रिसोर्टेड टू विन द इंटेंट टू डिप्राइव अनदर ऑफ हिज राइट इन सम मैनर और टू डू हिम एन इंजरी as distinguished from negligence. It is always positive intentional. Next is Scottish Cooperative Wholesale Society versus Mayor. In this case, the society created a subsidiary company to enable it into enter in the rayon industry. Subsequently, when the need for subsidiary ceased to exist, the society adopted a policy for running down its business, which depressed the value of its share. The two petitioners, who were MD and minority shareholder in the company, successfully pleaded oppression. The court ordered that a society to purchase the minority shares at value at which they were stood before the oppressive policy started. The decision has to be followed in HR हार्मर लिमिटेड, यानी एक सोसाइटी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई रेयन इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए। जब उनका सब्सिडरी से काम पूरा हो गया, उन्होंने अपने सब्सिडरी के शेयर बेच दिए, ठीक है सर, और खुद ही खरीद लिए कम रेट के ऊपर। एक मिनट, इसका ना मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ फिर से। वैसे ये तो छोटा सा बीच बीच में आंसर के बीच में लिखे हुए थे, ये आने का चांस है नहीं इतना, बड़े वाले केस आने के चांस होते हैं।
ये जो बीच बीच में आते हैं ना वन लाइनर्स कहीं से भी, आई डोंट थिंक सो इनका नाम याद करके कोई फायदा है, क्योंकि कहीं से भी आ जाने हैं सर। सोसाइटी ने एक सब्सिडरी कंपनी क्रिएट की ताकि वो रेन इंडस्ट्री में एंटर कर सके। बाद में जब सब्सिडरी की जरूरत खत्म होगी, सोसाइटी ने बिजनेस को रन डाउन करने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट की। ये पॉलिसी शेयर की वैल्यू को डिप्रेस करने लगी। जो पिटिशन दो पिटिशनर जो कंपनी के एमडी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे, उन्होंने सक्सेसफुली प्ली किया ऑपरेशन का। उन्होंने कहा ये तो ऑपरेशन है यार, ठीक है सर। कोर्ट ने सोसाइटी को ऑर्डर दिया कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को उनकी पहली वाली वैल्यू पे परचेज करें, जो ऑपरेसिव पॉलिसी से पहले थी। ठीक है जी। नेक्स्ट केस इज इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड वर्सेस मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड, जून 2021 में आया था ये। Supreme Court in had held that deception is necessary ingredient under both part of the section. Complainant must prove that inducement has been caused by deception exercised by accused. It was held that no disclosure of relevant information would also be treated as misrepresentation of fact leading to deception. इसमें लाइन यही है याद करने वाली, इसको अंडरलाइन कर लो। It was held that non-disclosure of relevant information would also be treated as the misrepresentation of fact leading to deception. Next is TR Arya versus State of Punjab. It was held that negligence in duty without any dishonest intention cannot be amount to cheating. A bank employee, when on comparison of signature of drawer passes a check, there may be negligence in resulting in loss to bank, but it cannot be held to cheating. मान लो कि एक बैंक एम्प्लॉय बैंक में काम कर रहा था, वहां पे किसी ने नकली चेक ला के दे दिया। अब वो क्या कहते हैं, जो बैंक एम्प्लॉय था उसने चेक को बड़े ध्यान से चेक किया, अच्छे से चेक किया, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ ठीक है, तो उसने वो चेक का ऑर्डर पास कर दिया। जब पास कर दिया तो बाद में पता चला कि भाई ये तो नकली सिग्नेचर थे। तो अब इस केस में बैंक एम्प्लॉय ने चीटिंग नहीं की, उससे गलती होगी, उसकी इंटेंशन थोड़ी थी चीटिंग करने की, उसका क्या बन जाता है यार। तो दिस इज द केस, ये आ सकता है टी आर आर्या। अभी तक मेरे को एडिशनल वालों में से यही लगा है जो सबसे समझदार केस बनता है, जो पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मेल विंड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मिनरल एंटरप्राइज लिमिटेड अनदर। दोस्तों अब मैंने एक चीज देखी है, आरसीडी में ना कभी कभी एमसीएस का केस उठा के पूछ देते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। The contention of the company. The contention of company is certainly tenable in the view that fact pending investigation or proceeding which have already been stayed by the Honorable High Court pertain to business unrelated to two division of the company proposed to be demerged. इसके fact क्या थे? The fact provided akin to case of Honorable Windmill. In this case, the appellant sought the demerger of wind energy generation business of the demerged company Mineral Enterprise Limited to Mel Windmills Private Limited, while transferring the real estate share and security investment to Mel Projects Private Limited. During the process, certain investigations pertaining to the mining business of the demerged company were disclosed. These investigations arising from a charge sheet filed by Special Investigation Team, State Lokayuta Police, were stayed by the High Court. Observation of tribunal. The tribunal initially declined to sanction the demerged scheme due to pending issues. However, NCLT observed that the tribunal at threshold stage should not have dwelled into merits of the scheme without ensuring the compliance with section 231 of Companies Act. This provision mandates a calling of meeting of creditor. दोस्तों ये ना थोड़ा हौच-पौच सा जा रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा कहना क्या जा रहा है। ये डीमर्जर से मर्जर पे आ गया सेक्शन पे, ये क्या बात हुई। मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट के आधी चीजें ना लैंग्वेज बड़ी हौच-पौच है। कोई कोई केस तो बटर स्मूथ जाते हैं, कोई कोई केस ऐसे पा देते हैं जिसमें पता ही नहीं लगता कहना क्या चाह रहा है भाई। कोई नहीं सर, हम भी पता लगा के रहेंगे। दया, हम इसका कुछ ना कुछ करके रहेंगे दया। हाँ जी। कंपनी का कंटेंशन टीनेबल है क्योंकि जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग उन्होंने हाई कोर्ट ठीक है स्टे कर दिया था, ये बिजनेस से अनरिलेटेड है जो डीमर्जर, ठीक है जी। फैक्ट इसके क्या थे, अपेलेंट ने डीमर्जर की रिक्वेस्ट की विंड एनर्जी जनरेशन बिजनेस का फ्रॉम मिनरल एंटरप्राइज लिमिटेड टू मैंड विल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और रियल एस्टेट का टू मेल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसफर करने की। प्रोसीडिंग के दौरान कुछ इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज हुई जो माइनिंग बिजनेस से रिलेटेड थी। देखो जो डीमर्जर की एप्लीकेशन थी वो विंड बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस की थी,
लेकिन जो इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई वो माइनिंग बिजनेस से आई, तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, ऑब्जर्वेशन बाय एनसीएलटी। ट्रिब्यूनल ने इनिशियली डीमर्जर स्कीम को सैंक्शन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल को पहले स्कीम के मेरिट्स में जाने से पहले 230 के कंप्लाइंस को इंश्योर करना चाहिए। ये प्रोविजन मैंडेट करता है कि मीटिंग ऑफ कंपनी इन्वॉल्व को कंसीडर करने के लिए प्रपोज स्कीम इज मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के फेलियर ने ट्रिब्यूनल के डिसीजन को विशेट कर दिया। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग जो अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड है, लीगल स्कीम में इम्पैक्ट नहीं, अगर इन्वेस्टिगेशन डीमर्ज होने वाले बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती। हाँ, एनसीएलटी ने, देखो ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इसने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी। एनसीएलटी ने उनके जो सैंक्शन थी डीमर्जर की स्कीम को वो रोक दिया, वो रोक दिया उसी के ग्राउंड पे कि भाई आपके खिलाफ तो वो चल रही है। लेकिन इसके अंदर एक्चुअली में क्या था, जुडिशियल प्रेसिडेंट और रीजनिंग के बेसिस पर पेरोड लिमिटेड कंटेंट इनेबल है। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन जो सेपरेट बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो प्रपोज डीमर्जर को इफेक्ट नहीं करती, उन्हें लीगल बैरियर कंसीडर नहीं किया जा सकता स्कीम के सैंक्शन को। इसीलिए ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन को स्टेज पर डिसमिस नहीं करना चाहिए और लॉ के कंप्लायंस में प्रोसीड करना चाहिए। जो एनसीएलटी है उसको सिर्फ ये देखना चाहिए कि इन्होंने कंपनीज एक्ट के सारे प्रोसीजर 231 वाले फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, इन्होंने मीटिंग्स हेल्ड की हैं या नहीं किए हैं। अब उसके खिलाफ, अगर उसके किसी और बिजनेस के खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल के आया जिससे इस वाली डीमर्जर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो एनसीएलटी उसका क्या कहते हैं, रोक नहीं सकता डीमर्जर, वो गलत बात हो जाएगी। तो इसमें यही था कि भाई डीमर्जर तो वो करना चाह रहा है विंड वाली कंपनी और रियल एस्टेट वाली कंपनी का, ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वो आया है आपका उसकी माइनिंग वाली कंपनी से, तो इसका रिलेशन तो हुआ नहीं ना कुछ आपस में डीमर्जर से। तो एनसीएलटी का इसमें कंटेंशन गलत था, हाई कोर्ट ने यही यहाँ पे बात इनको बता दी। नेक्स्ट इज कैमियो। ये कब का केस है, 2021 में आया था दोस्तों। आ भी सकता है केस और नहीं भी आ सकता, मेरे को ऐसा लगता है आरसीडी के आखिरी के 2 अटेम्प्ट्स रह गए। अगर रिपीटेड केस भी आना हुआ तो या तो ऐसा केस आएगा जो या तो अत्यंत मुश्किल, अत्यंत डिफिकल्ट केस हो, ठीक है, और या फिर अभी देखो आरसीडी की बुक में अभी भी 100 केसेस थे। अब जो हमने उसके केसेस की स्क्रूटनी की तो हमको पता लगा कि अभी भी सीआरपीसी में ऐसे ऐसे टॉपिक्स अनटच्ड पड़े हैं सर, 10-10 मिनट में पूछे ही नहीं, तो या तो वो टॉपिक आ सकते हैं। तो इस बार मेरी गट फीलिंग वही है कि जो अभी तक नहीं पूछे वो तो पक्का आने के चांस है। रिपीट पेपर का चांस मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखो हर ग्रुप में एक पेपर इंस्टीट्यूट पूरा खत्म करता ही करता है, और वो ज्यादातर आरसीडी का ही पेपर होता है जिसमें इंस्टीट्यूट पूरी बैंड बजाता है। ये पेपर में पता ही नहीं लगता कौन सी चीज कहाँ से आ गई। तो इसमें मेरे को इस बार गट फीलिंग है कि रिपीट पेपर आने के चांस कम है। हालांकि ये पुराना सब्जेक्ट है, अगर इंस्टीट्यूट खत्म करना चाहे तो कर सकती है, पर मेरे को इसमें लगता है कि रिपीट पेपर से ज्यादा कंटेंट इसमें वैसे ही पड़ा है अभी, जो पूछा ही नहीं कभी भी, तो वो भी हो सकता है। दोस्तों इसको आप भी अपने हिसाब से एनालाइज करके इसको आगे प्रोसीड करना। नेक्स्ट केस इज कैमियो कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड वर्सेस सेबी, 2021 में आता है। ये एमसीएस का केस है। द फैक्ट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन सिमिलर टू कॉर्पोरेट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या था, द सेट मेड following observation, nature of discrepancy, the discrepancy highlighted by SEBI primarily involved the mismatched photograph, mismatched signature, fake PAN card were not verified from income tax website, except for one complainant's case involving alleged impersonation. There was no complaint from other investor regarding the wrongful transfer of share certificates. Lack on investor roles for or appellant gain. SAT noted that there was no evidence to suggest that the appellant gained from wrongful transfer of share certificate. Similarly, no finding indicated any loss to investor except the specific case of the complainant. Prima facie case lack of due diligence. A prima facie case of failure of exercise basic due diligence was established against the appellant. However, no other investor apart from the complainant had come forward to report the grievance. इसके अंदर क्या हुआ कि सेबी के पास जो कुछ कागज फाइल करने होंगे, उसके अंदर गलत फोटोग्राफ, गलत सिग्नेचर और फेक पैन कार्ड चढ़ गए थे, जो कि इनकम टैक्स से वेरीफाई नहीं हुए थे, वो उसके अंदर चढ़ा दिए थे, ठीक है। किसी ने कोई दिक्कत नहीं उठाई, सिर्फ एक बंदे ने दिक्कत उठाई कि भाई जो क्या कहते हैं गलत हुए हैं भाई ट्रांसफर के शेयर, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था। Harshness of SEBI. SAT found that SEBI order restraining all applicants and accepting fresh client for 3 months to be harsh and unwarranted. SAT observed the punishment did not align with the gravity of discrepancy, as the appellant action did not result in financial loss to investor or personal gain to itself. Conclusion. Based on above, SAT held that restraining order imposed by SEBI was excessive in given circumstances, needing for reconsideration.
If the disparity given do not indicate investor loss or wrongful gain, the action taken against the entity should be proportionate to the extent to due diligence failure. Any penal action must align with principle of fairness and reasonable as under the circumstances. यानी कि अगर आपके उसमें कुछ जैसे कोई टेक्निकल इशू हो गया, आपने टेक्निकल गलती कर दी कि उसमें पैन कार्ड गलत थे, फोटो गलत थी, तो इसके अंदर सेबी उनको दूसरी पेनल्टीज नहीं लगा सकता, है ना। ड्यू डिलीजेंस का फेलियर हुआ है इसके अंदर, बट इसके अंदर कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेज उसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ वैसे नहीं लगने चाहिए। जिन्होंने वो ड्यू डिलीजेंस फेलियर किया है उन्हीं को सिर्फ पकड़ा जाना चाहिए। तो ये भी दोस्तों केस बड़ा हौच पौच सा केस है, पेपर के अंदर पता नहीं कैसे पूछा इन्होंने, बट ये भी मेरे को लगता है कि इतना कुछ खास जरूरी है नहीं। ये सेबी वाला तो एक ही बार आया सेबी का केस, आई डोंट थिंक सो दिस इज दैट। पर क्योंकि दिया हुआ पेपर में आप पढ़ जाना दोस्तों, पढ़ के जरूर जाना ये केस। लिबर्टी ऑयल मिल्स एंड अदर सोर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एक्स पार्टी इंटरम ऑर्डर एंड अर्जेंसी। कितने केसेस हैं? थोड़े ही हैं बस। यस, ये वाले हैं दोस्तों। इनके आने के चांस वैसे कम है, फिर भी मैं एक बार फटाफट, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इनको भी निपटा चलते हैं दोस्तों। पढ़ के हमारा हो जाएगा तो इट विल बी अ वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग थिंग ना, कि हमने सारा कुछ पढ़ा है। लिबर्टी ऑयल मिल्स, इसको फटाफट इंग्लिश में पढ़ते हैं यार इन पॉइंट्स में, इसको फटाफट निकालते हैं सर। पुराने केस वाले ना, इसके कंक्लूजन आप पूरे पूरे रीड कर जाना, इसको हम फटाफट देख के फटाफट निकालते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी के केस में पास किया जा सकता है। अर्जेंसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस से राइज होनी चाहिए जैसे लार्ज स्केल मिसयूज या मार्केट मोनोपलाइज करने की कोशिश, ठीक है सर। और रेगुलेटरी एजेंसीज को स्विफ्ट एक्ट करना चाहिए टू प्रिवेंट फ्यूचर मिसचीव एंड मार्केट में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना चाहिए। एप्लीकेशन टू प्रेजेंट केस, इस केस में इम्प्यून्ड ऑर्डर जो एप्लीकेंट को फ्रेश क्लाइंट एक्सेप्ट करने से रोकता है, जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि रियल अर्जेंसी डेमोस्ट्रेट नहीं हुई। एक्स पार्टी इंटरम ऑर्डर नॉन अर्जेंट सर्कमस्टेंसेज में पास करना नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का वायलेशन है, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी गारंटेड है। मतलब एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर तभी दो अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन, अगर अर्जेंसी नहीं है तो एक्स पार्टी देने की जरूरत नहीं है। एसएटी ऑब्जर्वेशन, एक्स पार्टी ऑर्डर वर्चुअली एक फाइनल ऑर्डर जैसा था डिस्पाइट डिटेल इंक्वायरी ऑर्डर होने के, ठीक है। ऐसे पावर स्पेयरिंगली और सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी के केस में एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो इस केस में एबसेंट थी। इम्प्यून्ड ऑर्डर जो अपेलेंट को फ्रेश क्लाइंट एक्सेप्ट करने से रोकता है, हार्श और अनवारंटेड था। कंक्लूजन, जजमेंट के बेसिस पर सेबी ने होल टाइम मेंबर का एक्शन एक्स पार्टी एडिटम ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द आरटीए फ्रॉम एक्सेप्टिंग फ्रेश क्लाइंट्स विदाउट डेमोस्ट्रेटिंग अर्जेंसी टीनेबल नहीं है। इम्प्यून्ड ऑर्डर को रिस्ट्रेंट एक्सटेंड तक क्वैश किया जब दूसरी डायरेक्शन ऑपरेटिव रहेंगे। मतलब उन्होंने बाकी सारा उसका ऑर्डर को वैलिड रहने दिया, सिर्फ उसका जो वो वाला ऑर्डर था कि आरटीए जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और जहां तक वो क्या कहते हैं उसको, क्या था सर, हाँ, जहां तक वो एक्स पार्टी ऑर्डर था वहां वहां तक उसने उसको क्वैश कर दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट केस की तरफ हम बढ़ते हैं। अमित कुमार गुप्ता, एलजीडब्ल्यू एंड अदर्स, दिसंबर 2022। ये केस अच्छा केस है सर। NCLT, while hearing both parties, observed that both parties presented their version with allegation and counter allegations. Neither party objected holding an EOGM under the chairmanship of special officer appointed by the tribunal. The objection raised by the petitioner regarding the passing of resolution to remove the director lacked merit, and the company's power under section 169 of the company remain intact. The NCLT found the NCLT impugned order well reasoned, legal, and without irregularity, leading to the dismissal of the application to present case. Based on the above precedent, where both parties agreed to hold an EOGM under the chairmanship of special officer, the NCLAT dismissed the appeal, finding no illegality in the order. Conclusion. In present case, the appeal filed by Raj against the impugned order is likely to be dismissed. The order is well reasoned and supported by the precedent set in Amit Kumar Gupta. The impugned order aligns with the provisions of Companies Act and Tribunal's power. Next is Delhi Vyapar Mahasangh and Flipkart Internet Private Limited and its affiliate entities, Amazon Seller Service Private Limited and its affiliate entities. इस केस में क्या था,
The CCI, after analyzing the allegations and supporting documents, observed the following practices on e-commerce marketplaces: exclusive launches, preferred sellers, deep discounting, preferential listing. Based on the evidence and public information, CCI found that exclusive launches combined with preferential treatment and deep discounting may create an anti-competitive ecosystem. Such practices might foreclose competition, leading to an appreciable adverse effect on competition. CCI directive. The CCI held that there was prima facie case requiring further investigation. The Director General was directed to investigate whether the alleged practices contravene Section 3(1) and Section 3(4) of the Companies Act 2002, Competition Act 2002. Application to the present case. In present case, similar allegations regarding exclusive arrangement, deep discounting, and preferential treatment are made based on the precedents. These practices may lead to anti-competitive outcomes, warranting an investigation. Conclusion. In the view of above decision, the Director General would likely order an investigation to determine whether the conduct of entity violates the provision of Competition Act or not. तो उसने बस इसके अंदर कुछ नहीं हुआ केस के अंदर, सिर्फ सीसीआई ने एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी कि भाई देख क्या हो कि जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं, इससे कंपटीशन एक्ट वॉयलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, बस यही था इस केस में. William C. Leitek Bros. In William C. Leitek Bros, it was held that if a company continues to carry on a business and incurs a debt at the time when to knowledge of the director, there is no reasonable prospect of the creditor even receiving payment of those debt. It is general or proper interference that a company is carrying on business with intent to defraud. दोस्तों एज इट इज लैंग्वेज में आपको उसकी दिखा रहा हूँ, आंसर की लैंग्वेज लिखी हुई है मैंने इसमें, जो हमारे उसके सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ था. अब बताओ बच्चा ये ऐसा आंसर कैसे लिखेगा सर. तो दोस्तों इसमें बड़ा हार्डशिप सब्जेक्ट है यार, आरसीडी इज वेरी वेरी हार्डशिप. ओहो. हाँ, अगर एक कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है और डेट्स इनकर करती है किसी ऐसे समय में जब डायरेक्टर को पता है कि क्रेडिटर को उनके डेट का पेमेंट कभी नहीं मिलेगा, तो ये जनरल इन्फ्रेंस निकाला सही नहीं कि कंपनी बिजनेस चलाने का इंटेंशन फ्रॉड करने का है. मतलब अगर कंपनी ने पहले ही लोन ले रखे हैं, ठीक है, और उसको पता है कि उनके जो क्रेडिटर है उनको कभी पैसा वापस मिलना नहीं, इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी वो इसके बावजूद भी वो और लोन ले रही है सर. इससे साफ पता चलता है कि उनका इंटेंशन जो है वो फ्रॉड करने का है. नेक्स्ट इज serious fraud investigation versus Rahul Modi and the contention of this case. The facts of the given situation are similar to the Supreme Court decision in SFIO versus Rahul Modi and others, where the issue of validity of SFIO investigation and actions after the prescribed time limit was discussed. Relevant observation by Supreme Court. ठीक है, SFIO वर्सेस राहुल मोदी, ये 2 दिसंबर 2022 में आया था. देखो दोस्तों, एक एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है जो बाहर से आएगा. देखो ये हर अटेम्प्ट के अंदर ना 19 से 20 में 22 में एक क्वेश्चन बाहर से आया सर. एक क्वेश्चन बाहर से ही आने ही वाला है, ये बात आप समझ के चलना. प्रेस्क्रिप्टिव पीरियड फॉर इन्वेस्टिगेशन. द टाइमलाइन अंडर सेक्शन 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी. जो सेक्शन 212 है कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर जो टाइम लिमिट है ना वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है. द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड डज नॉट रिजल्ट इन सेजेशन ऑफ एसएफआईओ इन्वेस्टिगेटिव मैंडेट. Continuity of mandate. If SFIO mandate ended with the expiry of period, it would lead to incongruous situations when the original investigation agencies would transfer their record would lose authority. The SFIO would also be powerless, leaving serious in frauds uninvestigated. It ended with the expiry, it would lead to encourage a situation where the original investigation agencies which transferred their record would lose authority. ठीक है. Legal legislative intent. The absence of clear provision of ending of SFIO mandate post the timeline indicate that legislative intent of investigation to continue until the logical conclusion. Legality of action post timeline. Arrest or action by SFIO are not rendered illegally solely because the investigation extended beyond the prescribed period. यानी कि इस ग्राउंड पे कि SFIO ने जो टाइम लिया वो प्रिस्क्राइब टाइम से ज्यादा टाइम ले लिया इन्वेस्टिगेशन करने में और अरेस्ट करने में, तो उसको नलीफाई थोड़ी कर देंगे, उसको माना जाएगा सर. जो इसके अंदर मेनली इस केस का क्रक्स यही है कि जो SFIO का इन्वेस्टिगेशन होता है सेक्शन 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर, जो उसके अंदर टाइम लिमिट्स बताए गए हैं दोस्तों, वो टाइम लिमिट जो है वो रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है. अगर उससे ज्यादा लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं. ये लिखा है. Application to present case. The extension of custody of an SFIO beyond the prescribed time limit is valid
as the timely and is the timeline is merely discretionary. The SFIO mandate continues unless investigation is completed. दोस्तों इसके अंदर टैगलाइन है ना, देखो कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं ना उसके अंदर टैगलाइन पढ़ने वाली है। अब जैसे इस केस की टैगलाइन ये है कि जो 212 के अंदर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो आपको वही 212 के आसपास ये टैगलाइन बड़ी बड़ी लिख के बीच का कंटेंट आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो, एग्जामिनर मेरे को नहीं लगता पड़ेगा उसका। ऑल्दो इट्स आईसीएसआई पेपर पर देखो दोस्तों कुछ चीजें चलती हैं, ठीक है, उसको टैगलाइन दिखनी चाहिए। नीचे कंक्लूजन में टैगलाइन यही लिखी होनी चाहिए कि इट्स रिकमेंडेटरी नॉट मैंडेटरी, बड़ा बड़ा लिख के आना, इट्स रिकमेंडेटरी नॉट मैंडेटरी। बस ये दिख गया उसको, फिर उसको बीच में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीच में देखो इन्होंने भी हौच पौच ही किया हुआ है। इतना तो हम वैसे ही लिख देंगे सर, इतना तो हम वैसे ही लिख देंगे, है ना, उसके बता देना कि वैलिड है कि नहीं है, बस ये हो गया। अब इससे हमको आंसर निकालने आ गए दोस्तों, ये जो हमारा मैराथन लिया हमने, हमें केस स्टडीज के कंक्लूजन पता लग गए ना, हमको आंसर निकालना आना चाहिए केस स्टडी का। केस स्टडी इज लाइक अ न्यूमेरिकल सम, हमारा नीचे कंक्लूजन और वो ठीक होना चाहिए कि वैलिड है या नहीं है, बात हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसके अंदर हम गलती ये करते हैं कि हम प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंक्लूजन नहीं निकाल रहे। मेन खेल सारा कंक्लूजन का है। तो आप जितने भी केस हमने पढ़े दोस्तों, कंक्लूजन सबका रट के जाना अच्छे से कि इसमें ये हुआ, केस का नाम हो सकता है आपको ना याद आए, कोई दिक्कत नहीं, कंक्लूजन ठीक होना चाहिए कि क्या ये हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता। वो टैगलाइंस, टैगलाइन एक एक वर्ड, वैसे मैंने इस बुक में बहुत सारी टैगलाइंस हाईलाइट की हुई हैं, फिर भी अगर कुछ रह जाए तो दोस्तों उसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। सेबी वर्सेस आरटी एग्रो लिमिटेड जून 23 में आया था। इसमें था वोटिंग ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सीधा कंक्लूजन पढ़ते हैं। हाँ, the proposal for purchase of 4,000 square feet of residential space was correctly treated as related party transaction and approved by shareholder as per the law. Thus, there was no violation on the part of XYZ Limited. SEBI penalty of 35 lakh on XYZ Limited was unwarranted and unjustified. The case demonstrated the importance of avoiding penalties based on hyper technical interpretation without evidence of ill intent. अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इसके केसेस। वोटिंग ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सेक्शन 188 of the Companies Act prohibits related party prohibits related party from voting only during the approval of a resolution for entering into RPT. In this case, related parties abstained from voting during the initial resolution approving the transaction. Voting to resign the resolution. The issue arose when a related party participated in voting and resigned the earlier resolution. The SEBI adjudicative officer penalized the company citing a violation of Regulation 23. ठीक है, सैट का डिसीजन, सैट हेल्ड दैट बार ऑन रिलेटेड पार्टी वोटिंग अप्लाइड ओनली टू द अप्रूवल ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। द पार्टिसिपेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी इन वोटिंग टू रिजाइन द रेजोल्यूशन वाज नॉट प्रोहिबिटेड। देखो उसमें क्या था, अगर आपके कंपनी के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो जो रिलेटेड पार्टी है ना, वो फॉर द पार्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी के जो रेजोल्यूशन है उनके ऊपर वोट नहीं कर सकता वो, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने रेजोल्यूशन है उसके ऊपर तो वो आ सकता है, मीटिंग में भी बैठ सकता है। आप उसको वोटिंग से ही मना कर दो कि तुमने मीटिंग में ही नहीं बैठना, तो वो बात गलत है। नो इल इंटेंट और मालाफाइड इंटेंशन बाय द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट upheld the SAT decision stating that cyber hyper technical interpretation was unwarranted। कि भाई जो सैट ने कहा वो ठीक बात है, जो सेबी कर रही है वो जरूरत से ज्यादा सोच रही है, ठीक है, और बेमतलब की इंटरप्रिटेशन कर रही है। It emphasized that penalty should not be imposed without evidence of mala fide intent or adverse impact on shareholders. Application to the present case. Whether there was any violation, no violation occurred. XYZ Limited complied with Section 188 during approval of RPT by abstaining from voting. The participation of related party during the residing resolution does not constitute a violation of Regulation 23. कि जब जब 188 की बात हुई तब उन्होंने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से, लेकिन बाकी रेजोल्यूशन के ऊपर तो वो वोट कर ही सकते हैं। तो दिस वाज गुड। No SEBI action justified. SEBI's action in imposing penalty of 35 lakh was not justified. There was no mala fide intent or adverse impact established, and hyper technical stance taken by SEBI was rightly disapproved in similar cases by SAT and the Supreme Court. तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ से बात समझ में आ गई। बस ये रह गए दोस्तों, 3 केस और रह गए, बस बस काम खत्म, काम खत्म दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपने हमारी जो सीरीज चलाई थी, मैंने तो नया ही चैनल बनाया था, मैं खुद पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे पढ़ के इसको यूट्यूब पे ही डाल देता हूँ। दोस्तों आपने बहुत ही इसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया, बड़ा प्यार दिखाया आपने इस वीडियो के ऊपर।
तो आई होप दोस्तों, जो जो भी दोस्त हमारे जो आरसीडी पढ़ रहे हैं, इस बार सबका पास हो जाए यार पेपर। भगवान करे दोस्तों, सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ओल्ड सिलेबस वाले तो बेचारे सारे निकल जाएं यार। ये भगवान ओल्ड सिलेबस के सारे बच्चे पास हो जाएं यार इस बार। मजा आ जाएगा यार, है ना। नेक्स्ट केस इज एलेज एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट बाय वेरियस बिडर्स इन सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ साइनेजेस एट स्पेसिफाइड लोकेशन ऑफ एसबीआई अक्रॉस इंडिया। अब इस केस में क्या है? In this case, it was alleged that certain bidders engaged in bid rigging and cartelization in tender floated by SEBI Infra Management Solution Private Limited for supply and installation of signages at branches, office and ATMs of SBI across the metro cities in India. Upon investigation, CCI found evidence indicating coordination among the bidders to fix price and allocate market, thus distorting the far bidding process. दोस्तों साइनेजेस क्या होते हैं पहले तो ये देखते हैं। What is साइनेजेस? अच्छा, साइन या ठीक है ठीक है ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पोस्टर मान लो आप दोस्तों, पोस्टर। As per the Section 2B of Competition Act, an agreement includes an arrangement or understanding, whether formal or informal, explicit or implicit. The broad definition includes tactic, understanding, and informal actions based on implied consent, nods and winks. ये जून 23 के अंदर आया था दोस्तों क्वेश्चन। एविडेंट्री स्टैंडर्ड इन केस ऑफ कार्टलाइजेशन डायरेक्ट एविडेंस इज रेयर। इसका पहले वो पढ़ते हैं हम डिसीजन। द सीसीआई upheld the allegation of cartelization, finding the party guilty of bid rigging and market allocation. A penalty was imposed on infringing entities to address the violation of competition rule. The case underscores CCI commitment to identifying and penalizing anti-competitive agreement to maintain fairness in market प्राइजेस। दोस्तों साइनेजेस लगाने थे एसबीआई की ब्रांचेस के ऊपर सारी जगह मेट्रो सिटीज के अंदर। उसके अंदर ये वो किया गया कंटेंट कि भाई जो इन्होंने साइनेजेस लगाया है ना, ये पहले से इन्होंने अपने आप ही डिसाइड करके लगा दी, अपने आप इन्होंने प्राइस कर दिए, तो इन्होंने बिड रिगिंग करी अभी। तो सीसीआई ने उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि एक्चुअली उन्होंने बिड रिगिंग करी थी, है ना। बिडर एंड टेंडर एंटी कॉम्पिटिटिव लेड टू सिग्निफिकेंट एडवर्स ऑन मार्केट। तो इससे बाकी लोगों को साइनेजेस वाला उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका नहीं मिला। मतलब बहुत ही फुद्दू सा केस था ये, पूछने के लिए जायज बनता ही नहीं आ रहा है आरसीडी के पेपर में, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं यार। और आरसीडी के पेपर के अंदर तो कंपटीशन एक्ट का इतना बड़ा कोई वो है भी नहीं टॉपिक, मैं मानता हूँ। पता नहीं यार क्यों पूछ लेते हैं भैया ऐसे कुछ भी। गैलेक्सी एंटरप्राइजेज वर्सेस इंदिरा बैन एंड अदर्स। द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनसीएलटी रजिस्टर्ड सेल डीड ऑन गुड फेथ, द सेल डीड ऑफ द ओपन वाज रजिस्टर्ड। इसमें क्या है? इसमें हुआ क्या था दोस्तों? इतना बड़ा केस आया था दोस्तों पेपर के अंदर बाहर से, पूरी बुक में कहीं नहीं है, पूरी बुक में कहीं नहीं है। और इन्होंने केस स्टडी बना के पूछा से सीधा। वाओ, वाओ वाओ वाओ। तो बच्चा डर जाए यार। जून में भी आया था एक गूगल वाला केस, पूछा था इन्होंने बुक के बाहर से। तो एक केस तो ये बाउंसर देते हैं यार, है ना। इसकी शॉर्ट समरी देखते हैं फटाफट, इसको निकाल लें दोस्तों और काम खत्म हो हमारा। शॉर्ट समरी। लेट्स सी। सेल डीड रजिस्टर्ड आफ्टर फुल पेमेंट, नो डिस्प्यूट और एविडेंस। अरे, अरे भैया, इंग्लिश में मांगा था यार। चलो इससे नहीं, दूसरे से पूछते हैं। इसको 2 मिनट के लिए बंद करो, इससे पूछते हैं दोस्तों, ये ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है ना लेंथी, उसको फटाफट निकालना है। दोस्तों एआई इज द बेस्ट थिंग, एआई इज द बेस्ट थिंग। सेल्फ स्टडी वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज है यार। फटाफट आप उस केस को कवर कर सकते हो, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, क्योंकि देखो बुक पेपर में आप अपनी ही लैंग्वेज लिख के आओगे, सारा कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप यही करो सर, वेरी शॉर्ट समरी इन इंग्लिश। ठीक है, एक तो ये तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा इसमें जी लगा रहता है, तीसरा इफेक्टिव है यार। जो चीज करने में हमको 10 घंटे लगते हैं ना सर, वो काम हमारा 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो गया। अब ये केस लॉज अगर हम ऐसे खुद पढ़ने बैठे ना बिना एआई के, सर दिमाग का नाश ठा देगा ये केसेस, बहुत खतरनाक चीज है। हाँ देखो, गैलेक्सी एंटरप्राइजेज वसी इंदिरा बैन में क्या हुआ?
सेल डीड वैलिडिटी, अर्जुन ने लैंड का रजिस्टर्ड सेल डीड कराया था और पेमेंट के बाद कोई डिस्प्यूट या बैड फेथ एविडेंस नहीं था। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, परमिशन लेकर कंस्ट्रक्शन किया गया, 302 यूनिट कंप्लीट हुई और कुछ लैंड मॉर्गेज भी हुआ। ठीक है जी। थर्ड पार्टी राइट, 61 यूनिट के लिए थर्ड पार्टी राइट बन चुकी थी और 14 परचेजर्स को एनओसी भी मिल गए थे। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, एनसीएलटी के इंटरिम ऑर्डर ने अर्जुन और परचेजर के राइट्स को इफेक्ट किया जो पिटीशन का हिस्सा भी नहीं थे। स्टेटस कुओ और ऑर्डर से पहले अपेलेंट और परचेजर को इरिपेयरेबल हार्म हुआ। एनसीएलटी डिसीजन, इंटरिम ऑर्डर को कैश किया क्योंकि प्रोजेक्ट का मेजर पार्ट कंप्लीट था और स्टेटस कुओ ऑर्डर से अपेलेंट और परचेजर को नुकसान हुआ। कंक्लूजन, अर्जुन का अपील अलाउ होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है और उन्हें बचे हुए यूनिट्स का सेल डीड एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिलेगी। तो दोस्तों दिस वाज ऑल दैट वाज इन दिस केस। नाउ लास्ट केस इज वी फाइट सोसाइटी वर्सेस एप्पल इंक, ये 2024 में आया था केस, अभी जून वाले में। इसमें ये था कि यार एप्पल ने अपनी एप्स बना रखी हैं, उसी के अंदर ऐप परचेजेस करवाता है वो, और उसी के अंदर ही वो करता है, किसी बाहर वाले पार्टी को अलाउड करने नहीं देता। तो बताओ क्या ये बात ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है? तो इसके अंदर ये हुआ था कि जो एप्पल कर रहा है वो एंटी कॉम्पिटिटिव है। ये केस ना सिमिलर था वो गूगल वाले केस के साथ, कि गूगल ने सारी ऐप एंड्रॉइड की बना रखी है, एंड्रॉइड की इन ऐप परचेजेस करता है, देसी टीवी में एंड्रॉइड नहीं चलने देता। तो ये वही था कि एप्पल अपने अपने प्रोडक्ट के अलावा किसी में आईओएस चलने नहीं देता, सारी ऐपें लॉक कर रखी हैं। तो बताओ एंटी कॉम्पिटिटिव है? तो आंसर इज यस, ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। इसका पेपर में आने का चांस दोबारा नहीं है क्योंकि ये अभी अभी आया था। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इतना ही दोस्तों हम आरसीडी के लिए हम कर सकते थे। तो उसमें हमने बहुत कोशिश की है कि इसको पेपर को हम किसी तरह से इसको शॉर्ट करें। तो एक ऐसा ही छोटा सा एफर्ट था ये छोटी सी मैराथन सीरीज। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर आरसीडी मैराथन सीरीज। एंड इसके बाद हम आपको एग्जाम्स के बाद मिलते हैं। एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सारे के सारे बच्चे हम सारे के सारे हम पास हो जाएं सर, आरसीडी का और ये जितने भी पेपर हैं हमारे प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबरों से पास हों। तो विद ऑल माई बेस्ट विशेज, आई एम टेकिंग लीव फ्रॉम यू। थैंक यू, बाय बाय।